کے پاک کلام کو کھولے۔ ہم شکر گزار ہیں خداوند اپنے خدا کے کہ ہم زمین پر زندہ ہیں۔ آمین۔ زندوں کی زمین پر خدا نے ہمیں آج کے دن تک زندہ رکھا ہے، اور ہم اپنے خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، یہ خوشی کی حالت ہے۔ سورہ اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اور 7ویں آیت سے لے کر 9ویں آیت تک خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے، اور اس کے متعلق سیکھیں گے ہم نے گا کر خداوند کی عبادت کی ہے، برکت پائی ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ہم جو ہے وہ راست بازوں کو زیبا ہے۔ ہم کا مطلب کیا ہے؟ ہم کیا ہے؟ گانا۔ اور زبور 33 میں 33 اس کی ورس نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے کہ ہم جو ہے وہ راست بازوں کو زیبا ہے، اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم راست باز لوگ، ہم اس کے لیے گاتے اور بجاتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں۔ سوئے اس حوالے کو میرے ساتھ دیکھیں، رسولوں کے اعمال پہلا باب اور 7ویں آیت سے لے کر 9ویں آیت تک خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہوا ہے، اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہ کہہ کر ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا، اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ آئے زوردار تعلیم بجائے، زوردار خدا کے کلام اور زور سے، ہاں اور زور سے۔ Praise God. Praise God. Praise God. خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو برکت دے۔ God bless you. خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ اچھا جی، کون سا دن ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ کس دن میں ہیں؟ کیا ہے آج؟ کیا ہے آج؟ عید پینتیکوست۔ اور اس دن کیا ہوا تھا؟ روح القدس نازل ہوا تھا۔ اور یہ دن کون سا ہے؟ آج کیا ہے؟ آج کون سا دن ہے؟ سنڈے ہے۔ اور سنڈے والے دن کی ایک اور اہمیت میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے۔ سنڈے والا دن ہمارے لیے کیوں اہم ہے؟ ہاں، اتوار کا دن، اتوار کا دن۔ اور میں نے بہت بار بتایا ہے کہ یہودی کیلنڈر کے مطابق اتوار کا دن ہفتے کا پہلا دن ہوتا تھا، لیکن مسیحی کیلنڈر کے مطابق اتوار جو ہے وہ ویکنڈ ہے، لیکن پہلا دن جو ہے وہ منڈے ہے، اب ویک کا۔ لیکن پہلے ہفتے کا پہلا دن کون سا ہوتا تھا؟ اتوار کا۔ اور اتوار کا دن ہمارے لیے اس لیے اہم ہے کیونکہ اتوار کی صبح سویرے خداوند یسوع مسیح بڑے فاتحانہ انداز میں مردوں میں سے جی اٹھے تھے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے اتوار کا دن ہم مسیحیوں کے لیے اہمیت رکھتا ہے، بلکہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اور پھر آپ ہر سال سنتے ہیں کہ لفظ پینتیکوست کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، کوئی بولا ہے؟ کس نے بولا ہے؟ کھڑا کرے ہاں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے بھی آواز آ رہی ہے۔ 50واں دن کو رہنے دیں، 50واں، اس کا مطلب 50واں ہے۔ اور عید پینتیکوست یہودیوں کی عیدیں تھی نا، یہودیوں کی 7-8 عیدیں تھی، اور عید فصح سے 50ویں دن یہ عید آیا کرتی تھی، عید فصح سے 50ویں دن۔ اور پھر یسوع مسیح، ایک اور بڑی اہم بات، اتوار کا دن یسوع مسیح زندہ ہوئے، اور اتوار ہی کے دن
मसीह अपने शागिर्दों पर जाहिर हुए, जी उठे ना उसी दिन, कुछ पर जाहिर हुए, और उसके हफ्ते के बाद फिर संडे वाले दिन ही यीशु मसीह अपने शागिर्दों पर जाहिर हुए। और फिर ये पेंटिकोस्ट का जो दिन है, ईस्टर से 50वें दिन आता है, आप काउंट कर सकते हैं। 17 तारीख को, 17 अप्रैल को ईस्टर था, 17 अप्रैल को ईस्टर था, और 17 से आज 5 तारीख तक, 17 को इंक्लूड कीजिएगा, 50वें दिन ईस्टर वाले इतवार से 50वां जो इतवार होता है वो ईद पेंटिकोस्ट का होता है। सो खुदावन हमारे साथ है, खुदा हमें बरकत देने वाला है। जो 3 वर्सेस मैंने पढ़ी है आपके सामने, जो 8वीं आयत है वो हमारी मरकजी आयत है, ज्यादा बात हम उस पर करें। 8वीं आयत जो हमारे ने 7वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक पढ़ा, लेकिन मरकजी जो आयत है वो 8वीं है, जहाँ लिखा है लेकिन जब रूह अल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। यीशु मसीह के दरमियान और शागिर्दों के दरमियान गुफ्तगू हो रही। और अगर हम पीछे देखें तो यीशु मसीह फिर से जिक्र कर रहे हैं 5वीं आयत में, लिखा है कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह अल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। आमीन। ये यीशु कह रहे हैं अपने शागिर्दों से। यीशु यूहन्ना इस्तिबागी का जो पानी से बपतिस्मा देता था उसका जिक्र करता है, कहते हैं उसने पानी से बपतिस्मा दिया लेकिन थोड़े दिनों के बाद। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमने पढ़ा है कि उनके देखते ही देखते यीशु मसीह उठा लिए गए, और यीशु ने कहा है कि ठहरे रहना। यीशु ने बहुत सारी बातें की, कहीं मत निकलना जब तक आसमानी लिबास तुम्हें नहीं मिलता, जब तक आसमान से कुव्वत जारी नहीं होती, बाहर मत निकलना। सुने, और ये आसमानी लिबास क्या है? ये पाक रूह है। यीशु ने कहा कि जब तक पाक रूह नाज़िल नहीं होता, जब तक आसमानी लिबास तुम्हें हासिल नहीं होता, कहीं मत जाना। और ये नबूवत आगे जहां पर रूह कुद्स नाज़िल हुआ है, दूसरे बाब पहली आयत में लिखा है जब ईद पेंटिकोस्ट का दिन आया था तो सब एक जगह पर जमा थे, और अचानक तेज आंधी का वहां पर जिक्र है, आंधी का सा सुनाटा है, आग के शोले किसी फटती जुबानों का जिक्र है। ये बातें यीशु मसीह ने जो यहाँ पर पूरी हुई, किस नबी ने कही थी? किस नबी ने इस बात की पेशीन गोई की थी? हाथ खड़ा कर, किसने बोला? किसे पता? किसे पता? हाथ खड़ा करें। रूह कुद्स के नाज़िल किस नबी ने कहा था कि उन दिनों में, खुदा ने कहा कि उन दिनों में मैं अपने रूह में से हर बशर पर, हर फर्द पर डालूंगा, आसान करता हूं। यूएल किसने कहा है? आपने कहा? हाँ, यूएल नबी ने कहा था। यूएल नबी दूसरे बाब को देखें, वहां पर लिखा होगा कि उन दिनों में मैं अपनी रूह में से हर फर्द पर, हर बशर पर डालूंगा। तुम्हारे जवान, तुम्हारे बूढ़े, गुलाम, लौंडियां जो है वो ख्वाब देखे, वो रोया देखे, वहां पर लिखा है वो नबूवत करें। और जब ईद पेंटिकोस्ट का दिन आया, जब रूह कुद्स नाज़िल हुआ, तो खुदा की कही हुई वो बात, वो नबूवत जो सैकड़ों साल पहले खुदा ने की थी यूएल नबी की मार्फत, वो पूरी हुई। और अब जानते हैं कि यहां पर हमने साइड में पढ़ा है कि यीशु पहले कह रहे हैं, यीशु पहले कह रहे हैं कि जब रूह कुद्स नाज़िल होगा तो तुम क्या पाओगे? कुव्वत। कौन सी कुव्वत? पाक रूह की कुव्वत, बदली कुव्वत नहीं, बदली कुव्वत नहीं। यीशु ने कहा कि जब पाक रूह नाज़िल होगा, जब रूह अल कुद्स नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत से भरोगे। हाँ, पाक रूह की कुव्वत जो है वो तुम में जारी होगी। और दूसरा बात निकाल ले अमाल की किताब, हम कुव्वत की बात कर रहे हैं। जब पाक रूह नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत से भर जाओगे। और यहाँ पर दूसरे बात में पहली आयत में लिखा है कि जब ईद पेंटिकोस्ट का दिन आया है तो वो सारे लोग जो तकरीबन 120 हैं,
एक जगह पर जमा है। और यहाँ पर लिखा है कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई है जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया है। और फिर लिखा है कि उन्हें आग के शोले की सी फटती हुई जुबानें जो है वो दिखाई दी है, और वो उनमें से हर एक पर आ ठहरी है। ना सिर्फ जोर का शोर हो रहा है, आंधी की आवाज है, बल्कि लिखा है कि उन्हें आग के शोले की सी फटती हुई जुबानें जो है वो दिखाई भी दी है। और ये जुबानें 120 पर जो वहां पर मौजूद हैं, लिखा है कि आकर उन पर ठहर गई है। और आगे लिखा है कि वो सब रूह अल-कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे हैं। और फिर लिखा है जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। पीछे हमने पढ़ा कि यीशु ने कहा कि जब पाक रूह नाज़िल होगा, जब पाक रूह तुम पर ठहरेगा तो तुम कुव्वत पाओगे। और यहाँ पर जब पाक रूह नाज़िल हुआ है, पाक रूह जब 120 पर ठहरा है, तो यहाँ पर लिखा है कि वो सारे पाक रूह से भर गए हैं। हाँ, शोले की सी जुबानें जो है उन पर आ ठहरी है। 120 हर एक शख्स पर ये जुबानें जो है ठहर गई है। जब उन पर ठहर गई है तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि वो रूह अल-कुद्स से भर गए हैं। और फिर यीशु मसीह की कही हुई बात, जैसे यीशु ने कहा कि जब रूह अल-कुद्स नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत से भर जाओगे, तुम कुव्वत पाओगे। और यहाँ पर लिखा है कि जब पाक रूह पर ठहर जाता है, पाक रूह नाज़िल होता है, तो वो जुबानें बोलने लगे हैं, वो रूह से भर गए हैं। बल्कि ये कहना चाहिए कि पाक रूह की कुव्वत से वो ममूर हो गए हैं, वो भर गए हैं। पाक रूह उन्हें बोलने की कुव्वत बख्श रहा है, ताकत बख्श रहा है, और वो मुख्तलिफ जुबानें बोल रहे हैं। और नीचे लिखा है कि वहां तकरीबन 16 से 17 कौमों के लोग हैं, और वो समझ रहे हैं कि ये हमारी जुबान बोल रहे हैं। हाँ, वो उन्हीं की जुबानें बोल रहे थे, लेकिन ये जलाल और कमाल खुदा का था, खुदा के पाक रूह का था जो उन पर ठहरा है, और इसने कुव्वत दी है, जो मुसलसल बोलने की कुव्वत दे रहा है। और जिस घर के अंदर वो जमा है, वो गूंज उठा है, जुबानें ठहर गई हैं और वो बोलने लगे हैं। और सुनने वाले लोग जो हैं वो हैरान हैं, वो दंग हैं, वो सोच रहे हैं कि क्या माजरा है, ये क्यों हमारी जुबानें बोल रहे हैं। हाँ, ये माजरा जो है, ये मामला जो है खुदा के रूह का है, वहां कोई इंसान नहीं, बल्कि 120 के दरमियान खुदा का रूह उतरा हुआ है, खुदा का रूह ठहरा हुआ है, खुदा का रूह नाज़िल हुआ है। इसलिए वो बेधड़क ज़माने से बेगाना होकर खुदा की तारीफ कर रहे हैं, जुबानें बोल रहे हैं, क्योंकि यीशु के कहने के मुताबिक जब रूह उतरा है, ठहरा है, तो वो पाक रूह की कुव्वत से, जोर से, पावर से और ताकत से भर गए हैं, और बेधड़क बोल रहे हैं, जुबानें बोल रहे हैं। इसलिए कि पाक रूह उतरा है, पाक रूह की कुव्वत और ताकत उनके अंदर जारी हुई है। जोरदार तारीफ है खुदा के लिए, जोरदार और जोर से तारीफ है। हाँ, और जोर से प्रेज़ गॉड। खुदा का पाक, खुदा आपको ब्लेस करे, खुदा आपको बरकत कर दे। यीशु मसीह की कही हुई बात, उसने कहा जब वो नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि वो घर जिसके अंदर वो बैठे थे वो गूंज गया है, वो घर गूंज गया है, जुबानें उन पर आ ठहरी हैं। और वो पाक रूह की कुव्वत से, मैंने कहा कि ये पाक रूह की कुव्वत की बात हो रही, ये आसमानी लिबास की बात है, ये पाक रूह की तहरीक की बात है। किसी इंसानी तहरीक या इंसानी पावर की बात नहीं है, बल्कि खुदा के जोर और खुदा की कुव्वत और खुदा की तहरीक की बात है। जब रूह नाज़िल हुआ, यीशु ने कहा जब वो नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे।
120 ने कुवत पाई है। वो पाक रूह से भर गए, वो पाक रूह से ममूर हो गए हैं। और आगे यीशु ने कहा कि बल्कि फिर जब तुम कुवत पाओगे तो यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। आमीन। और बगैर पाक रूह के कोई इंसान, कोई खादिम कुछ नहीं कर सकता जब तक पाक रूह की कुवत आपके अंदर नहीं है। और इसके बहुत सारे हवाले खुदा के कलाम में हमें मिलते हैं। अगर किसी शख्स ने बगैर रूह की तहरीक के कोई बात करने की कोशिश की है तो वो फेल हुआ। हाँ, अगर किसी शख्स ने बगैर पाक रूह की मर्जी के कोई काम करना चाहा है तो वो फेल हुआ है, वो नाकाम हुआ। लेकिन हाँ, जब पाक रूह की मर्जी है, जब पाक रूह की तहरीक है, जब पाक रूह के अल्फाज हैं, तो फिर हर वो बात, हर वो मिशन, हर वो काम जो है वो सक्सेसफुल होता है, क्योंकि पीछे पाक रूह की तहरीक है, पीछे पाक रूह की मर्जी है, पीछे पाक रूह की कुवत है, साथ पाक रूह की बातें हैं। और मैंने कहा कि बाइबल मुकद्दस में हमें कई ऐसे हवाले मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात मुकद्दस पतरस की है। मैंने पहले भी बहुत बार बताया पतरस कैसा शख्स था, मुझे बताएं। पतरस यीशु मसीह के साथ रहता था और बड़े बड़े दावे करता था। यहाँ पर रूह कुद्स नाज़िल हुआ है। यीशु ने पहले कहा, आपको समझ आ रही है बात? यीशु ने पहले कहा कि तुम रूह कुद्स को जब हासिल करोगे, जब वो नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओ। और मैं कह रहा हूँ कि हाँ, बगैर पाक रूह के कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता, ख़ुसूसन खुदा का काम। अगर मैं अपनी सोच के साथ खुदा का काम करना चाहूँ तो मैं नाकाम होगा। अगर खुदा ने मुझे कुछ नहीं कहा पर मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ तो मैं फेल होगा। लेकिन अगर खुदा ने कहा है तो फिर मैं कामयाब होगा, क्योंकि खुदा जो कहता है वो सच है। मेरा अपना प्लान, मेरी अपनी सोच जो है वो रॉन्ग हो सकती है, लेकिन खुदा की कुव्वत, उसकी कुदरत, उसका मैसेज, उसका पैगाम, उसकी बातें और उसकी तहरीक जो है वो कभी रॉन्ग नहीं होती, बल्कि वो हमेशा सच होती है, क्योंकि खुदा जो है वो सच्चा खुदा है। और मैं पतरस की बात इसलिए कर रहा हूँ कि पतरस यीशु मसीह के साथ रहता था और बड़े दावे करता था। उसने कौन से बड़े दावे किए थे? किसी को याद आ रहा है? मैं किस तरफ लेके आना चाहता हूँ आप हैं? वो यीशु मसीह से कहता था कि मैं तेरे साथ मरने को तैयार हूँ, कैद होने को तैयार हूँ। जब यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि तुम सब मुझे छोड़ दो, तो मुकद्दस पतरस कहता है हाँ, ये उसकी मोहब्बत थी खुदा के लिए, लेकिन ये उसकी अपनी सोच थी। इंसानी सलाहियत और कुव्वत को वो इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है वो फेल होता है। कहता है मैं तेरे साथ कैद हूंगा, बल्कि यहां तक कि मैं मरने को तैयार हूं। लेकिन यीशु मसीह ने उसे वाज़ेह किया कि नहीं, तू आज ही 3 बार मेरा इनकार कर देगा। और वो शख्स मौत को सामने देखकर परेशान हो गया, घबरा गया और साइड पर हो गया। क्यों? क्योंकि पाक रूह की तहरीक नहीं है, पाक रूह की मर्जी नहीं है, वो मैसेज पाक रूह की तरफ से नहीं है, खुदा की तरफ से नहीं है। लेकिन यहां पर आगे देखें, दूसरे चैप्टर पर है, जिनके पास बाइबल, जहां पर हमने पढ़ा है कि रूह कुद्स नाज़िल हुआ है। सुने, रूह कुद्स नाज़िल हुआ है, उन पर ठहरा है। यीशु ने कहा है कि जब ये नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। और यहाँ पर पतरस इस जमात के अंदर, हम पीटर की, पतरस की बात कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर वो शख्स भी, मुकद्दस पतरस भी इनके साथ है। और यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने कुव्वत पाई है। और आगे लिखा है, हमने पहले देखा है कि पतरस जब इंसानी ख्वाहिश को, इंसानी सलाहियत को इस्तेमाल करना चाहता, इंसानी कुव्वत को इस्तेमाल करना चाहता है तो नाकाम रहता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? हम क्या सीख रहे हैं? बोलिए कि जब रूह कुद्स नाज़िल होगा तो कुव्वत पाओगे, खुदावंद की तरफ से कुव्वत जारी होगी। पीटर ने, पतरस ने कुव्वत पाई है, कुव्वत को उसने हासिल किया है। और यहाँ पर लिखा है आगे
14वीं आयत से, दूसरे बात यहाँ पर लिखा है कि पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और उससे बातें करने लगा। हाँ, और वो योएल नबी की बात करता है, यहाँ पर लिखा भी है 16वीं आयत। उन्हें कहता है बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई है कि उन दिनों में खुदा जो है वो क्या करेगा। सुनिए, पतरस खड़ा होता है, रूह कुछ से भर गया, रूह कुछ की तहरीक जो है उसके अंदर है। हाँ, पहले रूह कुछ की तहरीक उसके अंदर नहीं है, लेकिन जब पाक रूह नाज़िल हुआ है तो उसने कुव्वत को, खुदा की कुव्वत को हासिल किया और उसी वक्त यहाँ पर लिखा है कि वो खड़ा होकर मुनादी करने लगा। और अगर इस सारे हवाले को हम पढ़े तो लिखा है बड़ी दिलेरी के साथ वो उन्हें कहता है कि तुम ही ने यीशु मसीह को मारा। यीशु मसीह जो एक रास्तबाज शख्स था, और योएल नबी की सारी बातें वो यहाँ पर बयान करता है कि उस वक्त क्या होगा। खुदा ने योएल नबी की मार्फत क्या फरमाया था, सारा वाक्य उन्हें याद करवाता है। हाँ, सारी बातें वो उन्हें याद, इधर देखें, खुदा सारी बातें उन्हें याद करवाता है पतरस के वसीले से। पतरस कहता है कि योएल नबी ने सैकड़ों साल पहले ऐसा कहा कि जब पाक रूह नाजिल होगा तो लोग नबूवत करें, लोग पावर को हासिल करेंगे। और यही बात खुदा यीशु मसीह ने कही कि जब वो नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। और हम पतरस की बात कर रहे हैं कि पहले जब इंसानी ख्वाहिश से वो काम करना चाहता है वो फेल है, लेकिन यहाँ पर जब पाक रूह की कुव्वत उसके साथ है, जब उसने कुव्वत को हासिल किया है तो बड़ी दिलेरी के साथ मुकद्दस पतरस जो है वो हजारों के सामने खड़ा है। क्योंकि ईद पेंटिकोस के मौके पर तमाम यहूदी पूरी दुनिया में से यरूशलेम आते थे और ये शख्स खड़ा हुआ और बाइबल में लिखा है कि हजारों लोगों के सामने, सैकड़ों लोगों के सामने नहीं, हजारों लोगों के सामने ये खड़ा होके बड़ी दिलेरी से बातें कर रहा है, बड़ी दिलेरी से यीशु मसीह की मौत के बारे में बता रहा है, बड़ी दिलेरी के साथ कलाम की, खुदावंद यीशु मसीह की, उसकी बातों की मुनादी कर रहा है। वजह क्या? वजह यह है कि अब पाक रूह से जोर मिला है, पाक रूह से कुव्वत मिली है, पाक रूह से हिकमत और दानाई मिली है। इसलिए ये शख्स जो पहले इतना दलेर नहीं है अब दलेर हो गया है और हजारों के सामने खड़ा है और दलेरी के साथ बातें करता है, मुनादी करता है। और यहाँ पर लिखा है कि उसकी मुनादी के वसीले से, उसके बोलने के वसीले से, कलाम करने के वसीले से पहले ही दिन तकरीबन 3000 के करीब लोग जो हैं वो मसीहियत को कबूल कर लेते हैं, यीशु को कबूल कर लेते हैं और बपतिस्मा लेते हैं। वजह यह है कि पाक रूह की कुव्वत उसके अंदर है, वजह यह है कि पाक रूह खुद उसके साथ खड़ा है। पहले ऐसा नहीं था। और हमने पढ़ा है तुम यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरी मुनादी करो। और बाइबल मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं इसी किताब रसूलों के अमाल, तो रसूलों के अमाल में हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ वो मुनादी करते रहे, किन किन हालात में वो मुनादी करते रहे। आगे मौत है, खौफ है, गैर कौमें हैं, बादशाह हैं, लेकिन तो भी वो खतरात के आलम में भी मुनादी करते हैं। क्यों? क्योंकि खुदा उनके साथ है। आमीन। खुदा उनके साथ है, खुदा का पाक रूह के साथ है, खुदा के पाक रूह की कुव्वत जो है वो उनके अंदर काम कर रही है। बगैर खुदा के पाक रूह के वो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए यीशु कह रहा है कि ठहरे रहना जब तक लिबास, कुव्वत का लिबास तुम्हें नहीं मिल जाता, कहीं ना जाना। और पुराना अहदनामा इस बात से बड़ा पड़ा है। कोई नबी, कोई भी नबी, कोई खुदा का पैगंबर खुदा के बगैर, खुदा के रूह के बगैर मुनादी नहीं कर पाए। अगर मुकद्दस मूसा फिरौन के पास जाता है तो भेजने वाला खुदा है। खुदा ने उसे कहा कि मैं तेरे साथ हूँ। खुदा उसके साथ था, वो जाना नहीं चाहता था, वो डरता था। वो कहता है कि मैं उसके सामने कैसे जाऊं, लेकिन खुदा उससे तसल्ली देता है कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ जाऊं, मैं तेरी कुव्वत बनूंगा, मैं तुझे जोर बख्शूंगा,
जा, मैं तुझे बताऊंगा कि क्या कहना है। और नए अहद में भी लिखा हो, यीशु ने शागिर्दों से कहा कि जब तुम जाओगे तो बोलने वाले तुम नहीं होगे, बल्कि तुम्हारे आसमानी बाप का रूह होगा, खुदा होगा, खुदा होगा, तुम नहीं होगे। यानी तुम्हें अल्फाज जो है वो खुदा की तरफ से मिलेंगे, तुम्हें हिकमत और कुव्वत जो है वो खुदा की तरफ से मिलेगी। और मैं आपको बताता हूं एक अपना एक्सपीरियंस छोटा सा सीखने के लिए कि वाकई ऐसा है, जब हम खुद प्रैक्टिकल करते हैं तो फिर और भी अच्छा समझते हैं कि हाँ, हम खुदा के बगैर कुछ नहीं कर सकते। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं तकरीबन 2 साल तक, मैंने कि शायद पहले भी इस बात को बताया कि तकरीबन 2 साल तक मैं गैर मसीहियों में मुनादी करता रहा इसी शहर में, बाजारों के अंदर। लेकिन मुझे याद है, ये बात बहुत लंबी है, मैं आपको मुख्तसर तौर पर बताता हूँ। हम सीख रहे हैं कि बगैर खुदा के रूह के हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे यीशु ने कहा कि जब रूह कुछ नाज़िल होगा तो कुव्वत पाओ। हाँ, मुझे याद है कि जिस दिन मैं पहले दिन गया था, जिस वक्त मैं इस काम के लिए गया था, गैर मसीहियों को यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा था। खौफ मेरे अंदर था, खौफ मेरे अंदर था। और फिर मैंने अपनी गाड़ी एक साइड पर रोकी और मैंने दुआ की। मैंने खुदा से कहा कि अगर तू करवाना चाहता तो फिर मुझे कुव्वत भी दे, मुझे हिकमत भी दे। और अब यकीन जानिएगा कि मैंने 2 से 4 मिनट दुआ की होगी और अपने अंदर मैंने एक अजीब इत्मीनान को हासिल किया। मैंने एक अजीब कुव्वत को अपने साथ पाया। और फिर पहले ही दिन जब मैं पहले डर रहा था, जब खुदा के रूह ने मुझे छू ली, जब उसने मुझे यकीन दिलाया कि हाँ मैं तेरे साथ, तो पहले ही दिन मैंने 7 गैर मसीही लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताया, पहले ही दिन। और मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। ये कमाल सिर्फ और सिर्फ खुदा के रूह का है। पतरस की बात हम कर रहे हैं, दावा उसने बड़ा कर लिया है, लेकिन सामने मौत को देखकर वो घबरा गया और पलट गया। यीशु को छोड़कर वो चला गया। लेकिन जब पाक रूह की कुव्वत उसके अंदर उतरी है मेरे अजीजों, तो फिर वो बड़ी दलेरी के साथ हजारों के सामने खड़ा और मुनादी कर रहा है। खुदा का पाक रूह जब इंसान को छूता है तो इंसान कुव्वत से भर जाता है। खुदा का पाक रूह जब अपने लोगों को छूता है, उनके अंदर उतरता है, तो वो दलेर हो जाते हैं, वो कुव्वत से भर जाते हैं। और ये दलेरी इंसानी नहीं, ये दलेरी किसी इंसान की नहीं है, बल्कि खुदा के अंदर से निकलती है। खुदा तहरीक देता है तो अल्फाज मुंह से निकलते हैं, खुदा जोर देता है तो दुआ मुंह से निकलती है, खुदा कुव्वत को जारी करता है तो शिफाएं जारी होती हैं, मौत से जारी होती हैं। ये किसी इंसान का काम नहीं, कोई इंसान नहीं कर सकता ऐसा, कोई इंसान नहीं कर सकता। और अगेन मैं आपको याद कराऊं कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ज़करिया की किताब लिखा कि जो इंसान नहीं कर सकता वो खुदा का रूह कर सकता है। जो जोर और तवानाई से नहीं होता वो खुदा का रूह कर सकता है। और ये बात यीशु मसीह ने भी कही, उसने कहा जो कुछ इंसान नहीं कर सकता वो खुदा कर सकता है। हाँ, हमारा खुदा सब कुछ कर सकता है। हम शागिर्दों को देखते हैं यीशु मसीह की बात के मुताबिक, ना सिर्फ यरूशलेम के अंदर, ना सिर्फ सामरिया के अंदर, ना सिर्फ यहूदिया के अंदर, बल्कि गैर कौम में दूर दूर तक यीशु मसीह के शागिर्द जो हैं, वो रसूल जो हैं, मुनादी करते हुए नजर आते हैं। मुनादी करते हुए यीशु के बारे में बताते हुए वो नजर आते हैं। और ये सारा जलाल, ये सारा कमाल और ये सारा क्रेडिट जो है ये खुदा का है, खुदा के रूह का है, उसकी कुव्वत का है, इंसानों का नहीं। आपके सामने और भी बहुत सारे रसूल हैं, नबी हैं, पौलुस आपके सामने है, पतरस आपके सामने। अगर इन्होंने मुनादी की तो खुदा के रूह की तहरीक से, वरना ये नहीं कर सकते थे। और यही वजह थी कि यीशु ने कह रहा था कि ठहरे रहे, जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले कहीं मत जाओ। उसकी वजह यही थी, यीशु को मालूम था, उसे मालूम था कि मुनादी ये बगैर रूह उसके नहीं कर सकते, ये दुआएं भी नहीं कर सकते, ये कुव्वत हासिल नहीं कर सकते। इसलिए हिदायत की गई है कि ठहरे रहना, रुके रहना। और जब वो रुके रहे, ठहरे रहे तकरीबन 10 दिन तक,
10 दिन तक वो दुआ में है, रोजे की हालत में है, और फाइनली वो वक्त आ पहुंचा है, पाक रूह नाज़िल हुआ और वो कुव्वत से भर गए हैं, और ऐसी कुव्वत उनके अंदर आई है कि मौत तक की परवाह नहीं की। यहाँ तक कि खुदा के कलाम को फैलाते फैलाते, मुनादी करते करते वो मर गए, लेकिन इस काम से वो पीछे नहीं हटे। ये सिर्फ और सिर्फ रूह कुद्स की बदौलत और उनके मुनादी करने, उनके खून बहाने की वजह से मैं और आप, बल्कि पूरी दुनिया में आज मसीहियत है। वरना ये ना होती, ये रास्ते में ही दम तोड़ देती है। यह उनकी कुर्बानियों का नतीजा है। हाँ, उन्हें क्रेडिट जाता है, लेकिन असल में जो क्रेडिट है वो खुदा को जाता है, जो तमाम तरह के हालात में अपने लोगों के साथ रहता है, वो कुव्वत देता है। मुझे बता, कितने लोग मेरा ऐसा मानना, मैं बहुत सारी जगहों पे बातें करने नहीं जाता, मेरा ऐसा मानना है कि हर जगह पर खुदा है, जाना गलत नहीं है, लेकिन अगर मेरा ईमान है, आपका ईमान है, तो खुदा हर जगह पर मौजूद है। बहुत सारे लोग आज भी मुख्तलिफ चर्चेस में घूमते हैं, शायद उन्हें रूह कुद्स नहीं मिला, पता नहीं, उनका अपना ज़हन है, लेकिन एक ही जगह पर अगर हम ईमान रखते और खुदा की बंदगी करते हैं तो खुदा हमें सब कुछ देता है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं, हाथ खड़ा करें। यहाँ पर जैसे लिखा है, यूहन्ना इस्तबागी लिखा है, यीशु भी याद करवा रहा है कि वो पानी से बपतिस्मा लेता था, लेकिन थोड़े दिनों के बाद तुम्हें रूह कुद्स का बपतिस्मा होगा, और यहाँ पर हुआ जब रूह कुद्स नाज़िल हुआ, 120 को रूह कुद्स का बपतिस्मा हुआ। आप में से कितने हैं जिन्हें रूह कुद्स का बपतिस्मा हुआ है? हाथ खड़ा कर। कितने हैं? ऊंचा करें हाथ। ठीक है, ठीक है। अब वो करें जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं, जिन्होंने कभी अजीब चीजें नहीं देखी, अपने मसीह से गैर जुबानें नहीं बोली, वो हाथ खड़ा करें, ऊंचा करें।